Morning, students. Today we start the chapter. The chapter is computer memory. Okay, and basically some memory, some storage device we already read in previous chapter, like CD, CD-ROM, DVD, and flash drive, memory card, and many more. Storage device we read in the previous chapter. Okay, in this chapter we learn what is actually computer memory and some types of memory and what is cache memory. These topics we read in this chapter. Okay, so the first topic of this chapter is computer memory. Memory play a very important role in a computer. It is a basic unit. What is memory? Memory play a very important role. Like if you want to do something in your computer, you are actually doing in your memory. आप किस में वर्क कर रहे होते हैं? मेमोरी में वर्क कर रहे होते हैं. If it's a basic unit, okay, where data and instruction are stored temporarily. Like, did you give some instruction to the computer, some save some data that's stored in your computer temporarily? Because computer memory basically sometimes we called primary memory also. It's a temporary memory. Temporary memory data and instruction is stored in a temporary period. Memory usually consists of one or more chip on the motherboard. Basically, your computer memory is on a motherboard. आपकी एक्चुअली में जो कंप्यूटर मेमोरी की चिप होती है वो कहाँ पर आपकी लगती है? इन अ मदरबोर्ड. ओके, एंड द स्पेस ऑफ इन मदरबोर्ड इज वन और मोर चिप्स. लाइक आप एक से ज्यादा चिप्स में लगा सकते हो. लाइक इफ यू हैव अ वन रैम ऑलरेडी and your the other second RAM space is also available in your motherboard. Okay, you can also easily buy a second RAM. Like if you have a 4 GB RAM in your computer, you buy a 4 GB extra or 8 GB. Now other RAM you put in your motherboard. Now your computer have a 8 GB or 12 GB RAM. Memory store instruction waiting to be executed by the processor. Memory store instruction. Memory आपके instruction को store करता है जब execute करता है आपका processor. Data needed by those instruction and result of processing and data. एंड जो इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसिंग होती है उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको भी आपकी मेमोरी में सेव रहता है. लाइक जब तक हम वर्क करते हैं अपनी मेमोरी में, जब तक वर्क कर रहे होते हैं हमारा डेटा सेव जब तक कुछ रहता है आपका मेमोरी में, दैट कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी. एंड व्हेन यू सेव द डेटा, द डेटा गोज ऑन योर सेकेंडरी मेमोरी, दैट समटाइम वी कॉल्ड अ परमानेंट स्टोरेज आल्सो. इट्स सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट स्टोरेज. A computer system is also equipped with some additional memory devices. In a computer system, you also add some additional memory devices also, which may be generally used to store programs. Like computer memory के अलावा जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, इसके अलावा एक एडिशनल डिवाइस भी आपके कंप्यूटर में होती है जिसके अंदर अपने प्रोग्राम स्टोर करते हैं. योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो स्टोर्ड इन दिस मेमोरी. योर एप्लीकेशन, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं बट परमानेंटली स्टोर करते हैं, नॉट टेम्परेरी. ओके, बिफोर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, so let's read what is memory units. What is actually memory units? Like just like solids, like when you weight something like gram and kilogram, and liquid measure in a liter and milliliter. Like what is memory units? Units basically is a if we are measure something solid like chini, atta, that we measure in a gram, kilogram, and liquid we measure in a liter and milliliter. Okay, similarly the computer memory is also have a unit, and the unit we called memory unit. They're called in bits and bytes. Memory basically computer memory calculate in a bits or bytes. Okay, and bit is a basic unit of your computer. सबसे जो smallest unit होती है आपके कंप्यूटर में होती है मेमोरी यूनिट में, बिट होती है, बिट. Okay, 1 byte equal to 8 bits. A computer process and store data instruction. कंप्यूटर क्या करता है, अपने डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है in the form of 2 digit like 0 and 1. Computer understand only binary digits. It's 0 and 1. Everything is you entered in a computer, it's converted into in its language like 0 and 1. जो भी आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हो वो उससे पहले 0 1 में कन्वर्ट करता है, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड दिस बाइनरी digits only. Okay, and these digits 0 and 1 called binary digits, or sometimes we called bits in short form. A bits is the smallest unit of information that a computer can process and store. This is smallest unit होती है, वो क्या होती है आपकी मेमोरी यूनिट में? बिट, जिसे कंप्यूटर स्टोर करता है और प्रोसेस करता है. स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बिट होती है.
एंड द ग्रुप ऑफ 4 बिट, अगर हम 4 बिट का ग्रुप ले तो उसको हम क्या बोलेंगे? द 4 बिट ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड निबल, NIBBLE. 4 bit of your 4 group of 4 bit is nibble, and the group of 8 bit is called byte. Like 1 byte equal to 8 bits. And don't confuse in it, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. बिट छोटा होता है, बाइट बड़ा होता है. 1 byte equal to 8 bits. Okay, and 1 nibble equal to 4 bits. It's half of bit. Nibble is half of your byte. Byte का half होता है nibble, like 4 bits. A byte is the minimum space required to store a character. Generally, if you want to store a one character like A and B, they are both 2 characters now. A is a 1 character. Okay, yeah, anything like number, symbol, like 1 symbol, 1 character, anything you want to save in your computer that consume a byte. Some generally a character consume a 1 byte. अब एक करेक्टर स्टोर करोगे अपनी मेमोरी में तो वो एक बाइट जितना डेटा कंज्यूम करेगा. अ बाइट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर अ कैरेक्टर. एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए मिनिमम एक बाइट स्पेस नीड होता है, एक 1 बाइट चाहिए होता है. एंड ये इस टेबल में आपको क्लियर हो जाएगा. ये टेबल है यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी की एंड इक्विवेलेंट्स इसमें शो किए गए हैं. लाइक 1 बाइट इक्वल टू 1 कैरेक्टर and 1 kilobyte equal to 1024 byte, and 1 kilobyte equal to 1024 bytes, and it's approximately about 1000 character is equal to 1000 character. Okay, because 1 byte equal to 1 character, so is about 1000 character or 1000 plus character, and 1 byte equal to 1024 kilobyte. You see 1 byte equal to 1024 byte, so about 1 million character. And 1 gigabyte is equal to 1024 megabyte, equal to 1 billion characters. 1 terabyte equal to 1024 gigabyte, about 1 trillion character. 1 petabyte. ये जनरली मेमोरीज के आपकी ये इतनी स्पेसिंग बढ़ती रहती है. लाइक अभी हम कौन सा यूज करते हैं जनरली हमारे कंप्यूटर्स में? हम जीबी और टीबी यूज करते हैं. पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट. जनरली किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है आपके सुपर कंप्यूटर्स के लिए, सर्वर्स के लिए यूज करते हैं. बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, उसमें ये वाली मेमोरी यूज करते हैं. जो हम अपने मोबाइल्स में और कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं वो कभी हम क्या यूज कर रहे हैं? एमबी, जीबी, टीबी. अभी जनरली हम इसमें अपना डेटा स्टोर करते हैं. मैक्सिमम इन कंप्यूटर वी आर यूजिंग टीबी, एंड इन योर मोबाइल वी आर यूजिंग जीबी, गीगाबाइट एंड टेराबाइट. 1 पेटाबाइट इक्वल टू 1024 टेराबाइट. 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 पेटाबाइट. जैसे आगे चलते रहेंगे मेमोरी का जो स्पेसिंग है वो बढ़ती रहेगी. 1 zettabyte equal to 1024 exabyte is about 166 trillion characters. Okay, 1 yottabyte equal to 1024 zettabyte, about 1 spatillion characters. जनरली जैसे जैसे मेमोरी की आपकी स्पेसिंग बढ़ती रहेगी आपके कैरेक्टर स्टोर होने की कैपेसिटी भी उसमें ज्यादा होती रहेगी आपके कंप्यूटर में. बाइट, अ बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर. Okay, you understand it? आपको पता चल गया है 1 byte equal to 1 character. A character can be a number, letter or symbol. एक character कुछ भी हो सकता है, एक number हो सकता है like 1, एक character letter हो सकता है like A, एक symbol हो सकता है like dollar sign, hash sign, @sign. Okay, and 1 byte consists of 8 bits. Bits means binary digit. एक byte में कितने bits होते हैं? 8. And bit is the smallest unit of information a computer can process. जो bit होता है वो आपके कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है. सबसे स्मॉलेस्ट. ओके, एंड नेक्स्ट इज किलोबाइट. 1 kilobyte is equal to 1024 bytes that we read. अभी हमने रीड किया है जो 1 kilobyte equal to 1024 bytes. This is approximately equal to 1 page of a textbook. जनरली एक बाइट है वो किसके इक्वल है? 1 किलोबाइट सॉरी किसके इक्वल है? एक बुक के पेज के इक्वल अंडरस्टैंड कर लो, बिकॉज इसके अंदर टोटल 1000 प्लस कैरेक्टर्स आएंगे. तो एक पेज में जनरली इतने कैरेक्टर होते हैं जिनमें ज्यादा टेक्स्ट लिखा होता है. ओके, ये इसको बुक से एक लाइब्रेरी से कंपेयर किया गया है. किलोबाइट को एक पेज से कंपेयर किया गया है. मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट. ओके, केबी शॉर्ट फॉर्म. दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 book. Megabyte equal to 1024 kilobyte. That means 1 kilobyte equal to 1 page. So 1000 pages approximately in one book. Okay. So second is next one is gigabyte. 1 gigabyte is equal to 1024 megabyte. Okay.
this is approximately equal to bunch of books like 4 or 5 books. It's approximately compared to 4 or 5 books equal to 1 GB data. Like जितना एक 4-5 बुक में डेटा होता है, जितने कैरेक्टर्स होते हैं, उतना हम अपने कंप्यूटर में कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं. And next is terabyte. A terabyte is equal to 1024 gigabyte. It's approximately equal to an entire bookshelf. ये bookshelf पूरा दिख रहा है आपको, इसके इक्वल पूरा कंपैरिजन किया गया है इसको. एक पूरे bookshelf में जितनी बुक्स है, जितने कैरेक्टर्स होंगे उनके अंदर है, एक टेराबाइट उसके इक्वल है. ओके, ये तो एक कंपैरिजन हो गया मेमोरीज का, लाइक केबी, एमबी, जीबी, पीबी का. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मेमोरी. ओके, basically the computer is divided into two types. Basically computers की memories को आपको two type में divide किया है. ये आपने एक अपनी previous class में भी read किया memory के types. Basically two types होते हैं, primary and secondary. Okay, first explain you what is primary. Basically primary we also known as a working memory, or sometimes we called a computer memory or main memory also of a computer system. इसे हम working memory भी बोल सकते हैं, computer memory, main memory भी sometime बोल देते हैं. Okay, and primary is are two types. Primary के generally two types होते हैं. Basically we called primary and secondary. It's a volatile, non-volatile. But primary also have a two types. You know, RAM and ROM. Okay, these are the two major type of primary memory. One is volatile and second one is non-volatile. Basically volatile means डेटा जब तक ही रहेगा आपकी मेमोरी में, जब तक पावर ऑन रहेगा. जैसे ही पावर कट ऑफ हो जाएगा, डेटा भी चला जाएगा. दिस इज अ नॉन वोलेटाइल, दिस इज अ वोलेटाइल. ओके, व्हेन द कंप्यूटर्स पावर इज टर्न ऑफ, वोलेटाइल मेमोरी लॉसेस इट्स कंटेंट. इसका डेटा रिमूव हो जाता है. अब व्हाट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी? शॉर्ट फॉर्म इज एनवीएम. डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. ओके, जब दैट मींस इट्स अ परमानेंट स्टोरेज टाइप. इसका डेटा नहीं रिमूव होता अगर आपका पावर चला भी जाए कंप्यूटर का. ओके, लाइक रैम. सो इट्स अ वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, एंड रैम इज अ वोलेटाइल. एंड द सेकंड इज रैम एंड रोम. देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. ये टू मेजर टाइप है आपकी प्राइमरी मेमोरी में, रैम एंड रोम. दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल. जिस मटेरियल के बने होते हैं रैम एंड रोम. यू सी द चिप, रैम एंड रोम चिप, यू सी इन पिक्चर आल्सो. दिस इज अ रैम एंड रोम चिप्स. कुछ इस तरह से दिखती है, और जिस मटेरियल के बने होते हैं, ग्रीन टाइप का एक मटेरियल होता है, उसके ऊपर ब्लैक चिप्स भी होती हैं. ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसके बने होते हैं. अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट मेमोरी. कंप्यूटर बिना मेमोरी के रन नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर लोड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ये हमने अभी सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में पढ़ा था. जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है प्राइमरी मेमोरी. और आपके प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो आप वर्क कैसे करेंगे? So that's the reason computer cannot run without primary memory. Do you know memory is like this is an example. Memory is like a carpenter shop. Like imagine the carpenter shop. The raw material is stored in another room, like hard drive in computer, like hard disk. Okay, and the carpenter is a CPU. Carpenter work as a CPU, brings them into a workshop memory. और जब भी उसे कुछ वर्क करना है, लाइक कंप्यूटर में कुछ भी वर्क करना है, क्या करेगा वो? पहले हार्ड ड्राइव से डेटा को प्राइमरी मेमोरी में लाएगा, फिर उस पे वर्क करेगा सीपीयू, एंड देन वापस उस वर्क को कहां सेव कर देगा? आपका हार्ड ड्राइव में. ओके, व्हेन दे नीड, जब भी आपको किसी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, क्या करता है कंप्यूटर? उस डेटा को उठा के लाता है प्राइमरी मेमोरी में. जब भी हम वर्क करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर करते हैं, ना कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर. तो अगर आपका डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है, तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन या कोई फाइल ओपन करते हो, तो वो पहले कहां पर आके खुल आती है, लोड होती है प्राइमरी मेमोरी में, और तब आपके सामने ओपन होती है. ओके, सो विद दिस एग्जांपल, bring them into the workshop when they are needed, when the carpenter has worked the complete, like when your work is in your complete on your software or any file, the finished pieces move from the workshop back to the room, like storage. यहाँ आपका परमानेंट स्टोरेज है, वहां जाके डेटा आपका दोबारा से सेव हो जाता है. लाइक जो भी आप वर्क कर रहे हो अपने कंप्यूटर में, वो सारा वर्क कैसे होगा? आपके सेव होगा. आपके पहले आपका जो ओपन करोगे फाइल को, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में लोड होगी, एंड देन ओपन इट एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, and after that you save the file, and again the file save in your secondary memory. Okay, it's work like that. Update your knowledge. A byte is a basic unit of unit in a memory. एक basic unit है, smallest bit है, but basic unit byte है, because one character equal to byte. Okay, and when an application and instruction data transferred to the memory from the storage device, and when an application instruction, जब एक application की instructions data transfer होते हैं memory from the storage device, स्टोरेज डिवाइसेस से प्राइमरी मेमोरी में,
या किसी भी या प्राइमरी मेमोरी में अंडरस्टैंड कर लो आप। बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि सेकेंडरी मेमोरी से जब भी डेटा प्राइमरी मेमोरी में आपका ट्रांसफर होता है, द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा एग्जिस्ट एज अ बाइट्स, और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डेटा बाइट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड ईच बाइट रेसाइड टेम्परेली इन अ लोकेशन इन मेमोरी। और जनरली हर बार जब भी प्राइमरी मेमोरी में आता है तो टेम्परेली उसे एक लोकेशन भी मिलती है जिसका एक एड्रेस होता है। ओके, एंड एवरी बाइट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर बाइट। अगर एक पूरी फाइल है वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 बाइट की एक फाइल है टोटल। ओके, लाइक अंडरस्टैंड 10 KB की एक फाइल है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 बाइट या 10,000 प्लस बाइट, and in which you see the 10,000 byte and each byte has a different address। हर बाइट का एक अपना एड्रेस होगा जिसपे वो डेटा उसका स्टोर होता है, कैरेक्टर स्टोर होते हैं। ओके, and next one is RAM। RAM is called main memory, sometimes RAM we call the main memory, consists of memory chips that can be from and written to the processor and other devices। This is a RAM look like this। RAM is also called a main memory। Okay, consists of a memory chips, you see some memory chips in it also, like black memory chips also you have to see in your chip। The whole chip is called RAM, but इसमें आपको black भी दिख रहे हैं, ये chips जनरली इसमें इंसर्ट की आती हैं, इनको memory chips बोलते हैं। that can be read from and written to by the processor। ये जनरली प्रोसेसर इसके थ्रू क्या करता है, चिप्स के थ्रू डेटा को रीड करता है और इसमें राइट करता है, and the other devices also। okay, तो मेमोरी चिप्स जनरली क्या करती है, डेटा को रीड करती है और राइट करती है बाय द प्रोसेसर के थ्रू भी, और अदर डिवाइसेस के थ्रू भी डेटा इसमें रीड एंड राइट होता है, लाइक इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के थ्रू। व्हेन यू टर्न ऑन अ कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो, सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर लोडेड इनटू रैम। दैट मींस ऑल योर ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड इनटू रैम फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस सच एज अ हार्ड डिस्क। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो, योर होल ऑपरेटिंग सिस्टम लोड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू प्राइमरी मेमोरी रैम, सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है। These files remain in RAM as long as the computer is on। तो ये रैम में फाइल कब तक रहेंगी, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा। When additional applications are data requested, they are also loaded in RAM from the storage device। एंड अगर आपको कोई और फाइल की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, जब आपने डेटा ओपन किया है, ये जो भी फाइल ओपन की है, तो पहले वो फाइल जब भी आप ओपन करते हो, फाइल किसमें ओपन होती है, प्राइमरी मेमोरी में, एंड देन यू यूज इट, तब उसे आप यूज कर सकते हो। ओके, एवरी टाइम if you want to use some file or some application from the storage device, first it's open in a primary memory in RAM, and then you use it। okay, the processor, the CPU interprets and execute a program। जनरली जो प्रोसेसर होता है वो आप जब भी आप रैम में खोलते हो तो वर्क करता है एप्लीकेशन पे, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द कंटेंट ऑफ रैम मे चेंज। जो आप कंटेंट डालते हो रैम में, आप वर्क कर रहे हो, जनरली वो चेंज हो रहा है, आप कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ इरेज कर रहे हो, जनरली चेंज हो रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम। रैम कैन अकोमोडेट मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। रैम कैन मैनेज और रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन ऑन अ वन टाइम, साइमल्टेनियसली, एक साथ चला सकता है। ओके, लाइक अभी जैसे मैं लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, मैंने पीडीएफ भी खोला हुआ है, ब्राउजर भी खोला हुआ है, तो जनरली दो फाइल्स को एक साथ रन कर रहा है, रैम ऐसे कर सकता है। ओके, रैम की वर्किंग कुछ इस टाइप से बनाई जाती है कि वो मल्टीपल वर्क्स एक बार में कर सके। एंड यू नो रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, इफ यू नॉट स्टोर योर डेटा द डेटा इज लॉस्ट if computer is turned off। okay, it's RAM is a volatile memory, its losses its content when the computer is turned off। अगर विदाउट सेविंग आप डेटा को कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दोगे, डायरेक्ट क्लोज बटन को बंद कर दोगे, स्विच ऑफ कर दोगे, देन योर डेटा इज लॉस्ट। ओके, फॉर दिस रीजन यू मस्ट सेव द आइटम्स यू मे नीड इन द फ्यूचर। इसके लिए जनरली हमें क्या करना होता है, अपने डेटा को हम सेव करते हैं अगर हमें उस डेटा की फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है। एंड व्हाट इज द सेविंग? सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग आइटम फ्रॉम रैम टू द हार्ड डिस्क। अपने डेटा को रैम से हार्ड डिस्क में कॉपी करने के प्रोसेस को हम सेविंग बोलते हैं। ओके, जनरली अगर हम रैम में डेटा छोड़ देंगे, सेव नहीं करेंगे, तो वो लाइट जाने पर अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा, डायरेक्ट पावर से स्विच ऑफ कर दोगे आप, तो आपका डेटा वहां से लॉस्ट हो जाएगा। एंड हाउ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर इन एंड आउट ऑफ रैम। दैट मींस जनरली जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ट्रांसफर कैसे होती है रैम में, कैसे अंदर आती है रैम के और कैसे बाहर जाती है, कैसे इन होती है, कैसे आउट होती है। कुछ स्टेप्स इन्होंने बताए हुए हैं। लाइक फर्स्ट स्टेप है व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर।
व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर योर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर लोडेड इनटू रैम। ये जनरली हमने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताया है और आप इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो योर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, पूरा लोड होता है आपके रैम में, ओके, फ्रॉम द हार्ड डिस्क। कहाँ से होता है? हार्ड डिस्क। जनरली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में इंस्टॉल रहता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के रैम में इंस्टॉल होता है जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्ले द यूजर इंटरफेस ऑन द स्क्रीन, और जनरली आपको दिखता कहाँ पर है वो इंटरफेस? कहाँ पर दिखता है? कंप्यूटर की मॉनिटर पर। जनरली हमें डिस्प्ले कहाँ पर दिखता है? मॉनिटर पर दिखता है। ओके, सो हार्ड डिस्क instruction is going in a RAM chip and RAM chip now link with the monitor for the operating system interface। जनरली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर दिखेगा, किस टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करेगा? अगर आपको वर्क करना है तो कहीं तो डिस्प्ले करेगा, वो तो मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। Like step second, and when you run a browser, you open a browser in your computer and the application instruction are loaded into the RAM from the hard disk। अभी तक सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड हुआ है, अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई? हमें ब्राउजर ओपन करना है। एंड देन योर ब्राउजर इज आल्सो इंस्टॉल्ड इन योर हार्ड डिस्क। ब्राउजर भी आपकी, जो ब्राउजर जनरली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहाँ पर इंस्टॉल होती है? आपकी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होती है। एंड वो क्या हुआ, आपका हार्ड डिस्क आल्सो योर ब्राउजर इंस्ट्रक्शन आल्सो लोड इन योर रैम, ओके, एंड द ब्राउजर सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम आर इन रैम। The browser and certain operating system instruction are in RAM। आपका ब्राउजर भी रैम में आ गया, आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन है वो भी रैम में है। एंड द ब्राउजर आपको फिर कहाँ पर शो होगा? डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। ओके, स्टेप 3, when you run MS Paint and then when you open a browser and then you open a Paint software, now the Paint program instruction loaded into a RAM from the hard disk and the अब ब्राउजर के साथ और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ आपके सामने पेंट प्रोग्राम भी ओपन हो गया। लाइक पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हुआ, देन यू ओपन अ ब्राउजर एंड देन यू ओपन अ पेंट सॉफ्टवेयर। यू सी दैट नाउ टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर रनिंग साइमल्टेनियसली, वन इज ब्राउजर एंड वन इज पेंट। दो एप्लीकेशन एक साथ चल रही है आपकी स्क्रीन पर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन भी चल रही है। इन रैम द पेंट प्रोग्राम विंडो आल्सो अपीयर ऑन द स्क्रीन। अब जो पेंट की विंडो है वो भी आपकी स्क्रीन पर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक द पिक्चर on your screen on your book। Next is step 4, when you exit an application such as a browser, like आपने एक एप्लीकेशन बंद करा, उसे क्लोज करा, जाकर एग्जिट पे क्लिक किया, इट इंस्ट्रक्शन आर रिमूव फ्रॉम द रैम। उसके इंस्ट्रक्शन है वो सारी रैम से रिमूव हो जाएगी, रैम से उसकी इंस्ट्रक्शन हट जाएगी, जो स्पेस उसने रैम में कंज्यूम किया था वो क्लियर हो जाएगा। द ब्राउजर नो लॉन्गर इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जैसे आप क्लोज करते हो उसकी इंस्ट्रक्शन रैम से चली जाती है और आपको स्क्रीन पर देखना बंद हो जाता है। ओके, जनरली ये इस टाइप से वर्किंग करती है, हार्ड डिस्क टू रैम और रैम टू हार्ड डिस्क, कुछ इस टाइप से वर्किंग होती है आपके कंप्यूटर में। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रैम। जनरली रैम के भी टाइप्स होते हैं, 3 कॉमन टाइप्स रैम के हैं आपके, डायनेमिक, स्टैटिक एंड मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम। ओके, वन बाय वन को हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। फर्स्ट इज व्हाट इज डायनेमिक रैम, समटाइम वी कॉल डी रैम आल्सो। इट्स इनएक्सपेंसिव, ये ज्यादा महंगी नहीं होती, एंड द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ मेन मेमोरी। ये बहुत पॉपुलर है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मेन मेमोरी आपके कंप्यूटर की कंप्यूटर में जनरली यूज करते हैं, वो चिप आपने दिखाई थी कुछ इस टाइप से होती है, ये वही है जनरली ये। एंड मैनी वेरिएंट ऑफ डी रैम चिप एग्जिस्ट, मोस्ट ऑफ विच आर फास्टर देन द बेसिक डी रैम। जनरली जो आपकी सबसे बेसिक, जो सबसे पहले डी रैम आई थी, अब उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जनरली रैम्स आ चुकी है। ओके, द करंटली इन आवर सिस्टम वी आर यूजिंग अ DDR4 रैम। जनरली जो हमने कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं DDR4 रैम यूज कर रहे हैं, किसी किसी में DDR5 पे आ गई है जो लेटेस्ट है। ओके, सो व्हाट फर्स्ट इज SD रैम, सिंक्रोनाइज्ड DRAM। इट इज फास्टर एंड मोर रिलायबल देन DRAM। जनरली आपकी बेसिक रैम है उससे ज्यादा फास्टर होती है और ज्यादा रिलायबल होती है। ओके, सेकंड इज DDR SD रैम, डबल डेटा रेट। ओके, SD रैम इट इज फास्टर देन SD रैम। जो SD रैम से ये फास्टर है, ट्रांसफर डेटा इज ट्वाइस। जो ट्रांसफर डेटा करने की कैपेसिटी है इसकी कंपैरिजन टू SD रैम ट्वाइस है, लाइक इससे दोगुनी है SD रैम से। ओके, एंड फॉर ईच क्लॉक साइकिल, जनरली आपको जो कंप्यूटर वर्क करता है वो क्लॉक साइकिल पे वर्क करता है। ओके, लाइक गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, कुछ क्लॉक साइकिल्स होती हैं उन पे वर्क करता है। तो जो इसकी DDR SD रैम की जो क्लॉक साइकिल है उसमें डेटा हर बार दुगना जाता है कंपैरिजन टू SD रैम। लाइक अगर कंप्यूटर SD रैम में एक बार में 1 बाइट जा रहा है तो इसमें एक बार में 2 बाइट जाएगा। इस टाइप से इसे अंडरस्टैंड करो।
सेकंड इज DDR2, इट इज द सेकंड जनरेशन ऑफ DDR। ये सेकंड जनरेशन है जो आई थी DDR SDRAM के बाद। इसकी स्पीड कंपैरिजन टू आपकी DDR SDRAM से ज्यादा है, बिकॉज ये बाद में बना है, तो जनरली न्यू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज DDR3, ओके, ये आपकी जो थर्ड जनरेशन की DDR है, विच इज डिजाइन फॉर कंप्यूटर्स विद मल्टी कोर प्रोसेसर। जो मल्टी कोर प्रोसेसर आए थे, ओके, उनके लिए जनरली बनाई गई थी ये, लाइक डुअल कोर टाइप को प्रोसेसर जब लॉन्च हुए थे, कोर टू जनरली उनमें ये रैम आई थी। इट इज फास्टर देन DDR2, ये DDR2 से भी फास्ट होती है, फास्ट है। नेक्स्ट इज DDR4, इट्स अ फोर्थ जनरेशन ऑफ DDR। ये आपकी जनरली फोर्थ जनरेशन है जो हम आज की डेट में हमारे लैपटॉप में और डेस्कटॉप में रैम आ रही है। DDR4 रैम आ रही है हमारे डेस्कटॉप में। आप सर्च करोगे जब भी लैपटॉप या और खरीदने के लिए ऑनलाइन, तो उसमें आप रैम चेक करना, आपको DDR4 रैम मिलेगी जनरली। ओके, ये जनरली वाली रैम कंपैरिजन टू DDR3 और ऑल प्रीवियस रैम्स की कंपैरिजन, इसकी जो स्पीड है काफी फास्ट है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज DRD रैम, रैम्बस DRAM। इट इज अ मच फास्टर देन SDRAM। ये जनरली SDRAM से फास्टर है, नॉट टू DDR2, DDR3, DDR4। ये भी एक न्यू वर्जन है, न्यू वर्जन। जनरली आप समझ लो ये SDRAM के बाद आई थी। ओके, ये फास्टर देन है SDRAM से ओनली। DDR, DDR2, DDR3, DDR4 से फास्ट नहीं है, बट ओनली फास्टर देन, इट्स मच फास्टर देन SDRAM। जितनी SDRAM है कुछ उसकी स्पीड की है, ये थोड़ा उससे ऊपर नीचे चलता है इसका स्पीड है। एंड नेक्स्ट इज इसका रैम का जनरली दूसरा टाइप है, वो है आपका स्टैटिक रैम। ये सारे जो टाइप थे DDR-RAM, SDRAM, DDR2, ये सब डायनेमिक रैम के अंदर के कुछ चिप्स थे जो इनको जनरली इवॉल्व होते गए, तो डेली उनकी स्पीड कंपैरिजन टू प्रीवियस वन इंक्रीज होती गई। एंड नेक्स्ट जो टाइप है आपका रैम का, वो आपका स्टैटिक रैम, SRAM, इज एफिशिएंट एंड फास्ट। ये आपकी फास्ट है और एफिशिएंट है और बहुत एक्सपेंसिव है कंपैरिजन टू DRAM, इज इट्स एक्सपेंसिव। SRAM is a small amount as cache memory, generally is called a cache memory also। ये एक small amount of cache memory टाइप समझ लो आप इसे। ओके, कैशे मेमोरी इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। जनरली कैशे मेमोरी का क्या वर्क होता है, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। ओके, ऑफ अ कंप्यूटर बाय स्टोरिंग अ डेटा, लाइक व्हेन यू स्टोर अ डेटा, उसकी स्पीड को भी फास्ट करती है। और जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कंप्यूटर को, जनरली ये वाली फाइल ओपन कर दी, ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया, दूसरा ओपन कर दिया, उसको स्पीड को फ्रीक्वेंटली अच्छे से चलाती है, जनरली ओपन करती है आपके सामने। अगर आपकी कैशे मेमोरी आपके में अच्छी डली हुई है, तो आपका कंप्यूटर एक अच्छी स्पीड पे वर्क करता है। Okay, so static memory sometimes we called cache memory also, and it's increase your computer performance and improve your performance of your computer. Okay, and next is magneto resistive RAM. It's short form we called MRAM. It's a newer type of RAM, ये newer type है RAM का, which store data using magnetic charges. Generally जो आपके previous RAMs हैं, like dynamic and static, ये डेटा जो स्टोर करते हैं ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस का यूज करके डेटा को स्टोर करते हैं। बट रैम में जो आपका डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक चार्जेस को यूज करके डेटा यूज करते हैं, स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक, तो उसमें एक वर्ड याद रखना, मैग्नेटिक चार्जेस। ओके, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। लाइक आपकी जो प्रीवियस रैम आपने पढ़ी है उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस यूज होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, बट इन मैग्नेटो रेजिस्टिव में आपका मैग्नेटिक चार्ज यूज होता है डेटा को स्टोर करने में। It manufacturer claim that MRAM has a greater storage capacity। जो उसके मैन्युफैक्चरर है वो क्लेम करते हैं कि जो MRAM की स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफी है कंपैरिजन टू द अदर रैम। ये बहुत कम पावर कंज्यूम करती है और उसकी स्पीड अदर रैम्स के कंपैरिजन बहुत फास्ट है। ओके, एंड MRAM retains its content after computer switched on। जब आपका कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ हो जाता है तब भी MRAM का डेटा लॉस नहीं होता। ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है जो जनरली आपका डायनेमिक रैम का हो जाता है जब आप उसमें डेटा स्टोर करते हो। ओके, लाइक आपका स्टैटिक रैम का भी हो जाता है, और जनरली आपका जो मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम वाला है जिसमें मैग्नेटिक चार्ज का यूज करके डेटा को स्टोर किया गया है, इसका डेटा लॉस नहीं होता आपका कंप्यूटर बंद होने का, विच कुड प्रिवेंट लॉस ऑफ डेटा फॉर यूजर। ओके, एंड सेकंड इज मेमोरी मॉड्यूल्स। मेमोरी मॉड्यूल्स आपको बताए गए हैं, like it's like a memory module। You see the chip, RAM chip is look like this। जो ग्रीन पार्ट है ये पूरा एक मॉड्यूल है, इसके अंदर चिप्स लगे हुए हैं, ब्लैक चिप्स लगे हुए हैं। ओके, ये मेमोरी चिप्स हैं। जनरली डेटा आपका इन्हीं के अंदर जो टेम्परेरी पीरियड के लिए इन्हीं के अंदर स्टोर हो रहा है।
मेमोरी मॉड्यूल इज अ सर्किट बोर्ड, इट्स अ सर्किट बोर्ड, और सर्किट बोर्ड में आपके चिप्स लगते हैं, जो ब्लैक ब्लैक चिप्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। एंड रैम इज अ टाइप ऑफ मेमोरी चिप। रैम भी एक टाइप का क्या है, चिप है, दैट मेक्स अप द मेन मेमोरी इन अ मैनी कंप्यूटर सिस्टम। ओरिजिनली एक मेन मेमोरी बनाता है, लाइक बहुत सारी इसमें चिप लगाकर, और एक पूरा मेमोरी मॉड्यूल बनता है, जिसे हम पूरी को क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। ओके, जनरली टू टाइप्स के मेमोरी मॉड्यूल्स हैं, वन इज SIMM and second is DIMMs, DIMM. First is SIM, single inline memory module. Full form is single inline memory module. Generally एक लाइन में ही इसमें मेमोरी मॉड्यूल लगते हैं, सिंगल इनलाइन, एक सिंगल लाइन में मेमोरी मॉड्यूल लग रहे हैं। It's the most common type of memory module. ये बहुत कॉमन टाइप है। सिम्स कैन हैव आइदर 30 और 72 पिंस, जनरली 30 to 72 पिंस होते हैं, जो नीचे पिंस दिख रही हैं जिसकी बात करें। But the 72 pins module is more common in new computers. Generally जो 72 more pins वाली आ रही हैं नीचे जो आपको दिख रही हैं, ये न्यू कंप्यूटर्स में आपको देखने को मिलेगी। ओके, 30 पिन भी मिल जाती है, पर जनरली जो न्यू कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें 72 पिन वाली मिलेगी। जनरली डेस्कटॉप, नॉट अ लैपटॉप। लैपटॉप में तो छोटी वाली रैम लगती है, वो बहुत ही छोटी होती है कंपैरिजन टू द बोथ। ये तो जनरली एक डेस्कटॉप के लिए है। जनरली आप कंपैरिजन कर सकते हो, जो लैपटॉप में लगती है वो 30 पिन वाली लगती है, जो डेस्कटॉप में लगती है वो 72 पिन वाली लगती है। और जो लैपटॉप और कंपैटिबल छोटे लैपटॉप आते हैं उनमें और ज्यादा छोटी रैम आती है उनके लिए। ओके, a bank of sims usually consists of two sockets, so you can install two sims at a time. जनरली जो आपके अभी जो लैपटॉप या कंप्यूटर आप खरीदते हो में दो सॉकेट आते हैं रैम लगाने के लिए। एक में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती है, और एक्स्ट्रा अगर आपको एक्स्ट्रा रैम की रिक्वायरमेंट है लगानी है अपने कंप्यूटर में, तो आप दूसरा स्लॉट, ब्लैंक स्लॉट होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसमें आप दूसरे स्लॉट में भी अपनी रैम लगा सकते हो, एक दूसरी लाकर मार्केट से, या लगवा सकते हो। तो जनरली टू सॉकेट आते हैं जो आपके सिम्स यूजुअली जो आप आ रहे हैं आजकल, टू सॉकेट्स आ रहे हैं, तो आप दो सिम एक बार में लगा सकते हो, दो सिम रैम एक बार में लगा सकते हो अपने कंप्यूटर में। एंड जो आपका सेकंड है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, DIMM is used in computer with a Pentium or compatible CPU. Generally जो आपके Pentium 4, Pentium 3 सीरीज आई थी, ये approximately 10 to 15 years before की बात है, उनके लिए जनरली ये आया था। इसमें कितनी पिन होती है, 168 पिन्स आई थी इनमें। इस टाइप की रैम थोड़ी बड़ी होती है कंपैरिजन टू सिम। जो सिम वाली रैम है उसके कंपैरिजन ये बड़ी होती है, देखने में आपको दिख भी रहा है इसका साइजेस कितना बड़ा है, पिक्चर से आप इसको कंपेयर कर सकते हो तीनों को। A bank of DIMMs consist of only one socket, और जनरली उन कंप्यूटर्स में एक ही सॉकेट आता था, एक ही रैम लगती थी, तो आपको एक बार में आप एक ही DIMM उसमें एट अ टाइम लगा सकते हो, एक से ज्यादा नहीं लगा सकते। बट जो आज के कंप्यूटर लैपटॉप्स आ रहे हैं उनमें दो स्लॉट आते हैं, एक में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती है, एंड सेकंड वन यू कैन इंस्टॉल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट इज रैम रिक्वायरमेंट। The amount of RAM on the computer determines the amount of program and data a computer can handle at a one time. The amount of RAM on the computer determines the amount of program and data a computer can handle at a one time. आपने अगर जनरली आप एक रैम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर डाला हुआ है, ओके, एंड यू ऑलरेडी हैव अ प्रोग्राम्स एंड डेटा ऑन योर कंप्यूटर, तो रैम जनरली इस रिक्वायरमेंट की होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में, जितना आपने प्रोग्राम्स या यूज करना है आपको डेटा, वो उसको हैंडल कर सके एक टाइम में। जनरली अगर इस टाइप से नहीं होगा तो एक हैंग सिचुएशन आ जाती है। जनरली कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना, वो जनरली तभी होता है जब आपका कंप्यूटर की रैम थोड़ा कम होती है कंपैरिजन टू योर वर्कलोड। ओके, ये आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। ओके, एंड कंप्यूटर कैन ओनली मैनिपुलेट डेटा दैट इज इन इट्स मेन मेमोरी। जनरली आपको पता ही है, कोई भी डेटा आ जाएगा आप ओपन करोगे, वो कहाँ पर पहले जाएगा, रैम में जाएगा, फिर आपके सामने ओपन होगा। सो रैम का यूज ज्यादा है, तो आपका जितना आपका रैम ज्यादा होगी आपका कंप्यूटर उतना फास्ट रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, लाइक अगर आप क्लिक करते हो किसी फाइल पे, किसी किसी कंप्यूटर में वो खुलने में थोड़ा टाइम लेता है, लाइक 1 सेकंड, हाफ सेकंड, जनरली किसी किसी में एकदम खुल जाता है। जिसमें लेट खुल रहा है जनरली उसमें रैम कम हो सकती है, ये एक बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है कंप्यूटर में। Next is ROM, read-only memory. ROM refers to memory chips used for storing data that can be read-only. Generally, ROM refers to memory chips used for storing data that can be read-only. Generally, जो ROM में डेटा होता है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। ओके, जिसमें स्टोर्ड आता है, ROM पहले से ही प्रोग्राम्ड आती है, उसमें डेटा पहले से ही स्टोर्ड आता है।
ओके, द डेटा ऑन रोम चिप्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज इट्स नेम इज रीड ओनली, ओके। रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल, और डेटा भी इसका पावर लॉस्ट होने पे या पावर कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पे इसका डेटा लॉस्ट नहीं होता, बिकॉज रोम एक किस टाइप की मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल। रोम चिप्स कंटेन डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड परमानेंटली। जनरली जब कंपनी से आती है वहीं से ही प्रोग्राम आती है, इसके अंदर कुछ डेटा पहले से आपका आता है, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन पहले से रिकॉर्डेड आती है परमानेंटली। फॉर एग्जांपल रोम के अंदर एक आपका बेसिक इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम आता है इंस्टॉल्ड, इसे बोलते हैं बायोस, ओके। रोम कंटेन बायोस। जनरली व्हाट इज द वर्किंग ऑफ बायोस is a sequence of instruction that computer follow to load the operating system and the other files। ये कुछ instructions है, sequence है instruction की, जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करता है जब भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है आपकी प्राइमरी मेमोरी में, ओके। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो और जब भी आपकी प्राइमरी मेमोरी में इंस्ट्रक्शन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी फाइल लोड होती है फ्रॉम हार्ड डिस्क टू प्राइमरी मेमोरी, जो आपका बायोस है, BIOS, ये हेल्प करता है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा और ये फाइल लोड होगी। जनरली कौन बताता है कि कैसे आपको फाइल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, बायोस बताता है। और ये बायोस होता है किसके अंदर है, रैम रोम के अंदर होता है, और ये पहले से ही इंस्टॉल्ड आता है फ्रॉम द कंपनी। जो प्रोग्राम करते हैं रोम को उसमें डालकर भेजते हैं, ओके। मैनी अदर डिवाइसेस आल्सो कंटेन रोम चिप्स, काफी सारी डिवाइसेस में रोम चिप्स होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल रोम चिप्स मैनी प्रिंटर्स में भी आपकी रोम चिप्स कंटेन होती हैं। लाइक अब जो लेटेस्ट प्रिंटर आ रहे हैं सब में आ रहे हैं, आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दिखेगी या कुछ वर्किंग होती है उसकी। रोम चिप्स इन मैनी प्रिंटर्स कंटेन डेटा और फॉन्ट्स, उसमें थोड़ा डेटा भी होता है। कुछ प्रिंटर्स के हम पेजेस निकालते हैं, लाइक जब हम प्रिंटर में एक न्यू कार्टेज लगाते हैं तो हम टेस्ट पेज निकालते हैं, उसका टेस्ट करने के लिए प्रिंटिंग किस टाइप से दिखा रहा है। जनरली कुछ ना कुछ फॉन्ट और डेटा उसमें स्टोर रहता है, तभी वो प्रिंट निकल के आता है। वो जनरली कंप्यूटर का यूज करके नहीं होता, प्रिंटर के कोई भी टू एक स्पेसिफिकली कुछ बटन्स होते हैं उनको प्रेस करके प्रिंट पेज निकल जाता है, टेस्ट पेज। तो जनरली वो रोम चिप होती है उसके अंदर, जिसके अंदर वो डेटा थोड़ा सा स्टोर्ड रहता है। एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ रोम, जो भी रोम चिप को मैन्युफैक्चर करता है, ऑफन रिकॉर्ड द डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन ऑन द चिप व्हेन दे मैन्युफैक्चर देम। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसके अंदर डेटा, इंस्ट्रक्शन दे एंड इंफॉर्मेशन दे स्टोर इन, ओके। एंड दीज रोम चिप्स आर आल्सो कॉल्ड फर्मवेयर, और इस टाइप की चिप्स को रोम चिप्स को हम फर्मवेयर भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें पहले से इंस्टॉल्ड प्रोग्राम आते हैं। फर्मवेयर जनरली क्या होता है, जो पहले से इंस्टॉल्ड प्रोग्राम जिसमें आते हैं। जनरली यू सी इन योर रिमोट, टीवी रिमोट, आप बटन प्रेस कर रहे हो, जनरली कुछ तो उसमें प्रोग्राम पहले से है, जो बटन दबाने पर आपका चैनल चेंज हो रहा है, या वन दबा रहे हो तो वन आ रहा है स्क्रीन पर, तो वो उसमें रोम चिप लगी हुई है, जिसमें पहले से प्रोग्राम, उसके अंदर इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्टॉल उसके अंदर पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डाली गई है, उसके अंदर एक रोम चिप लगाई गई है। ये अधिकतर आपकी न्यू जो वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव आ रहे हैं, सब में एक फर्मवेयर प्रोग्राम होता है जो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। तो मतलब ये कंपनी ही अपने जब भी उसमें एक रोम चिप लगाती है, उसे प्रोग्राम करके भेजती है कि उसको इस टाइप से वर्क करना है। तो रोम चिप को हम जनरली फर्मवेयर भी बोलते हैं। ये कुछ वेरिएशंस हैं आपके रोम चिप्स के टाइप्स, समझ लो आप इसे। फर्स्ट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली। व्हाट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी? PROM, short form we call PROM. It's a blank ROM chip on which you can place items permanently. ROM chips look like that, black in front of you in the picture on your screen also. The chip is a blank ROM chip on which you can place items permanently. जनरली आप क्या करते हो, इसके अंदर डेटा आपका परमानेंटली स्टोर्ड आता है पहले से। प्रोग्रामर यूज्ड माइक्रो कोड इंस्ट्रक्शन, इसमें प्रोग्रामर इसमें डेटा डालने के लिए माइक्रो कोड इंस्ट्रक्शन यूज करता है PROM चिप को प्रोग्राम करने के लिए। जो ब्लैक टाइप की होती है ये, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। सेकंड इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EPROM। ये एक अनदर टाइप है रोम का, व्हिच इज कंटेंट एंड इरेज बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। इसमें से डेटा हम इरेज कर सकते हैं, बट वो कैसे कर सकते हैं? थ्रू द अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे का यूज करके इसमें से हम डेटा को रिमूव कर सकते हैं, बट नॉट अस, हम नहीं कर सकते। ओनली प्रोग्रामर, जो इसे प्रोग्राम करेगा वही कर सकता है। रिप्रोग्राम बाय देन RPROM प्रोग्राम, जो भी इसका प्रोग्रामर है वही जनरली इसको रिप्रोग्राम कर सकता है, जिसने इसे इसमें पहले प्रोग्राम डाला है। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें करने के लिए? अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं डेटा को इसमें से रिमूव करने के लिए। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल EPROM। ये एक अनदर वेरिएशन है
प्रोम चिप का, ये एक दूसरा टाइप है। नेक्स्ट अगला टाइप है आपका प्रोम चिप का। ये अलाउ करता है प्रोग्राम को टू इरेज दिस माइक्रो कोड। जनरली आपका जो माइक्रो कोड डलता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है माइक्रो कोड में डलती है रोम चिप के, तो उस माइक्रो कोड को इरेज करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज होते हैं। जैसे डेटा रोम में डालने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यूज करते हैं हम, डेटा स्टोर इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू होता है। ऐसे ही इसमें भी आपका डेटा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू स्टोर्ड होता है आपका ईप्रोम में, और इस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करके डेटा इसमें से हम रिमूव करते हैं, इरेज करते हैं। ओके, ये आपकी स्टूडेंट्स प्राइमरी मेमोरी थी, जिसमें हमने रैम का एक्सप्लेन किया और रोम का एक्सप्लेन किया। सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। जनरली अगर आपको डेटा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं। लाइक व्हेन यू आर वर्किंग इन अ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, एंड व्हेन यू स्टोर योर फाइल और योर डेटा, that data is stored in a secondary memory, and secondary memory is called in your computer secondary memory is hard disk. Okay, the other example of secondary memory is pen drive, compact disk, DVD, external hard disk. These are the example of secondary memory. Okay, and it's operate a slower rate than the primary memory. The speed of hard disk is slower comparison to primary memory, because primary memory आपकी fast होती है comparison to secondary memory. This memory is permanent in nature. ये permanent storage है, इसमें आप डेटा आपने स्टोर कर दिया, डेटा अपने आप कहीं नहीं जाएगा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे। डेटा stored is not lost even when the power is switched off. So it's known as non-volatile. Like जैसे रोम आपकी non-volatile है, ऐसे ये भी आपकी एक non-volatile memory है। It is also known as a backup memory. इसमें हम backup memory भी बोल देते हैं। Like all data हमारा सब इसमें stored रहता है as a backup. Okay, example of secondary memory: hard disk, compact disk, pen drive. Generally in previous chapter you learn, हमने अपनी रीड भी किया हुआ है व्हाट इज हार्ड डिस्क, व्हाट इज कॉम्पैक्ट डिस्क एंड व्हाट इज पेन ड्राइव, एटसेट्रा एटसेट्रा। और काफी आपकी डिफरेंट टाइप्स की सेकेंडरी मेमोरी मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज कैशे। कैशे इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट इनहेंस द सीपीयू स्पीड। ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा है वो टेम्परेरी टाइम ऑफ पीरियड के लिए स्टोर होता है, and they enhance the CPU speed. And what is the use of this? They enhance, ये आपकी speed, CPU की speed को enhance करता है, बढ़ाता है। Most of today's computer improve their processing time with cache. जो कि काफी सारे कंप्यूटर्स हैं मार्केट में जो आज की डेट में अवेलेबल हैं, वो कैशे मेमोरी का यूज करते हैं अपनी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, प्रोसेसिंग टाइम को कम करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। लाइक जो हमारी वर्किंग है वो कम से कम टाइम में हो जाए, कंप्यूटर बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करे। And memory cache improve the processing speed of a computer because it store frequently used instruction and data. And जो आपकी कैशे मेमोरी है वो आपकी improve करती है, कैसे improve करती है आपकी स्पीड को? ये जनरली जो frequently यूज होती है इंस्ट्रक्शन और डेटा, उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेती है, तो डायरेक्ट हर बार उसको उसके लिए हार्ड डिस्क में नहीं जाना होता, तो जनरली वहीं से कैशे में से मिल जाती है। क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क का जो स्पीड है वो स्लो है, कैशे एक बहुत फास्ट मेमोरी है, जनरली उसे बार बार वहां नहीं जाना होगा, वहीं से इंस्ट्रक्शन वो बार बार कैशे से ही कॉपी कर लेगा, तो स्पीड स्लो फास्ट हो जाएगी। ओके, तो जो फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शन है जिन्हें बहुत यूज हो रहा है अभी काम करते टाइम, या डेटा है उसको वो कैशे में स्टोर कर लेता है आपका कंप्यूटर, इस टाइप से प्रोग्राम किया जाता है। एंड कैशे इज बिल्ट डायरेक्टली इन द प्रोसेसर चिप। और जनरली कैशे कहाँ पर बिल्ट की जाती है, कहाँ पर बनाई जाती है, जबकि प्रोसेसर चिप है उस पर ही बनाई जाती है जनरली कैशे मेमोरी। तो जनरली प्रोसेसर को सेकेंडरी मेमोरी तक जाना ही नहीं होता, वहीं से ही उसे मिल जाता है अपने पास से डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए। When the processor need an instruction or data, it first search cache, because जो उसके पास है पहले उसे सर्च करेगा, कैशे उसके पास है। जब भी उसे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है इंस्ट्रक्शन की, वो फर्स्ट कहाँ सर्च करता है, कैशे मेमोरी में डेटा को सर्च करता है। अगर वहां मिल जाता है तो फटाफट काम होता रहता है, अगर नहीं मिलता है तो इट डज नॉट एलोकेट द आइटम इन कैशे, देन इट सर्च इन रैम, तो वो रैम के पास जाता है। अगर रैम में भी डेटा नहीं मिलता, if the instruction or data is not found in memory, अगर रैम में भी नहीं है तो वो किसके पास जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज के पास जाता है, हार्ड डिस्क और सीडी और पेन ड्राइव। उसकी स्पीड स्लोअर है कंपैरिजन टू अदर मेमोरी। जनरली ऐसे आपका कंप्यूटर वर्क करता है। तो आपकी स्पीड अगर आपको इंप्रूव करनी होती है तो आज की डेट में जो आपके कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है वो इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ओके, कैशे मेमोरी को यूज कर रहे हैं जिससे आपकी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को इंप्रूव कर सके। एंड मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव 3 टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ मेमोरी कैशे। लाइक वो अलग अलग लेयर भी उन्होंने यूज कर बना रखी है जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में, लाइक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इट्स लाइक
अलग अलग सेक्शंस हो गए हैं। लाइक लेवल 1 में नहीं मिलेगा तो लेवल 2 में चेक करेगा, लेवल 2 में नहीं मिलेगा लेवल 3 में चेक करेगा, फिर रैम के पास जाएगा। तो ये काफी डेटा हम कैशे मेमोरी में स्टोर हो सकता है। एंड नो द फैक्ट्स, फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी that can be erased electronically and rewritten similar to EEPROM। जनरली या फ्लैश मेमोरी हम यूज करते हैं जनरली किस टाइप से फ्लैश मेमोरी होती है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। दैट मींस इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और डेटा को डिलीट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, लाइक जैसे हम ई प्रोम में करते हैं, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में करते हैं, जैसे हम सम रैम चिप एंड फ्लैश मेमोरी चिप एंड अदर मेमोरी चिप्स यूज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये आपका रैम में भी यूज होता है। जब फ्लैश मेमोरी जनरली वी कॉल्ड मेमोरी कार्ड्स और पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी बोला जा रहा है यहाँ पर। इनके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एक टाइप की मेमोरी चिप यूज करते हैं जिन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दिस वर्ड यू आल्सो इफ यू लर्न इन फिफ्थ क्लास आल्सो, ये आपने फिफ्थ क्लास में भी अपना वर्ड पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ओके, ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करते हैं आपकी रैम चिप्स में, फ्लैश मेमोरी चिप्स में और आपकी अदर मेमोरी जो आपकी चिप्स है उनके अंदर, बिकॉज इनकी जो स्पीड है कंपैरिजन टू अदर बहुत तेज होती है, बहुत हाई स्पीड है और जो बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को रिमूव करने के लिए और दोबारा से रीराइट करने के लिए। जनरली आप देखा होगा पेन ड्राइव लगाते हैं कंप्यूटर में, अपना वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, डेटा जो स्टोर करना है और जो कॉपी करना है कर लेते हैं फटाफट। बिकॉज वाई दिस ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इसकी हेल्प से ये हो पाता है बिकॉज मेमोरी चिप्स में ये टाइप टेक्नोलॉजी यूज की गई है। Second is, do you know if you are shopping for a new computer or looking to upgrade your existing computer, अगर आप न्यू कंप्यूटर खरीदना चाह रहे हो और एक न्यू अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना है, मेक श्योर दैट इट विल हैव सफिशिएंट मेमोरी। लाइक अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो उसमें एक सफिशिएंट मेमोरी होनी चाहिए। लाइक अपग्रेडेशन की भी कोई पॉसिबिलिटीज होती हैं, लाइक अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी ही कम है तो वो अपग्रेड नहीं होगा। बिकॉज एक पुराना कंप्यूटर लिया हुआ है अगर उसको आज के अकॉर्डिंग अपग्रेड करेंगे नहीं होगा, बिकॉज उसमें जो आपका प्रोसेसर है और जो मेमोरीज है वो पुराने के अकॉर्डिंग लगी हुई है। और मैंने कंप्यूटर हैज इनसफिशिएंट मेमोरी, और जब इनसफिशिएंट होती है तो उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है जनरली। एंड ऑन द अदर हैंड इट वुड बी अननेसेसरी एक्सपेंस टू परचेज अ कंप्यूटर विद मोर मेमोरी देन यू विल एवर यूज। एंड ये भी अननेसेसरी है कि आपको ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है और ज्यादा मेमोरी वाला कंप्यूटर खरीदो, लाइक 2 TB 3 TB 4 TB वाला। जब आपका 400 GB में वर्क हो रहा है तो अपनी बड़ी मेमोरी का भी खरीदने का फायदा नहीं है। और ऐसे कंप्यूटर को अपग्रेड करना भी कोई एक अच्छी बात नहीं है जिसको जिसमें मेमोरी सफिशिएंट नहीं है, जिसमें पहले से मेमोरी कम है, लाइक उसकी हार्ड डिस्क कम है, तो आपको अगर अपग्रेड करना है तो सब चीजें अपग्रेड करनी होगी उसमें। इससे अच्छा है कि आप न्यू ही बाय कर लो, और बाय भी अगर न्यू कर रहे हो तो एक अपना नीड को देखो कि हमें किस टाइप के कंप्यूटर की नीड है। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2।